Hello students, welcome to the third lecture of roots classes. Today we will do algebra, and in algebra we will study polynomial, quadratic equation and linear equation in two variables. So our first topic is polynomial. What is the meaning of polynomial? An expression of the form px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus anx to the power n, where an is not equal to 0, is called a polynomial in x of degree n. So what is the meaning of this? If suppose you will write px is equal to a0 plus a1x plus a2x square. So suppose I have written 3x plus 5. So this is also a polynomial, but here the power of x is 1. Therefore this is a polynomial in x of degree 1. Okay, similarly 4y square minus y plus 8 is a polynomial in y. This is the polynomial in y because here variable is y and the degree of the variable is highest degree is 2. So the polynomial in y of degree 2. Now there are many types of polynomial. A polynomial of degree 1. Okay, so what is linear polynomial? Linear polynomial is a polynomial of degree 1. This is very important. Similarly, if suppose we have to write an example of linear polynomial, then we can write 3x plus 5 because in this the power of x is 1. Therefore this is the example of linear polynomial. Now we will study about quadratic polynomial. It's very important to learn all the names because this is very applicable in our further studies of mathematics. A polynomial of degree 2. A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. So we can write anything 2x square minus x plus 4. Anything we can write. Only power should be what? Here power is 2. Now cubic polynomial, a polynomial of degree of degree 3. Like we can write it 3x cube minus 2x square plus 4x plus 4. This is the cubic polynomial. Now next is biquadratic polynomial. What is the meaning of biquadratic polynomial? Generally students get confused in biquadratic polynomial. If a polynomial of degree 4, a polynomial of degree 4 is called biquadratic. For example, we can write x4 minus 2x plus 4. This is also the polynomial of degree 4. Now next is, what is the zero of the polynomial? Our next topic is zero of the polynomial. Listen students, zeros are only known as roots also. Here I am in bracket, I am writing roots. Roots of the polynomial is also known as zeros of the polynomial. So a real number alpha is called a zero of polynomial px if p alpha is equal to 0. So what is the meaning of this? Suppose I have taken px is equal to x square minus 2x minus 3. Okay, now in place of x what you will write? In place of x what you will write so that my px will become 0. This is known as zeros. If suppose here it is written that I will write alpha, in place of x I will write alpha. So if I will write alpha, then my whole function will become 0. So this alpha is known as roots or zeros of the polynomial. So here what we can write, suppose in place of x you are writing minus 1. So minus 1 whole square minus 2 into minus 1 minus 3. So it will become 1 plus 3 minus 3. It will become 0. It means minus 1 is the 0 or roots of the polynomial or root of the polynomial. ठीक है ना? Similarly you can find some more number also, because listen students, here the highest degree is 2. It means you can find 2 zeros. ये चीज़ आप लोग याद रखना कि अगर पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री हाईएस्ट होता है उतना ही आप जीरोज या रूट्स निकाल सकते हो. सपोज यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो आपका एक -1 पे तो आ ही रहा है. अगर आप इसको चेक करोगे 3 पे तो 3 पे भी आएगा. देखो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3.
तो ये आपका 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 ये 0 आ रहा है। तो मेरा मतलब कि 3 भी क्या है, रूट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो कि जब जितना डिग्री का पॉलिनॉमियल, जैसे बाई क्वाड्रेटिक में आपका 4 डिग्री हाईएस्ट डिग्री होता है, तो आपका 4 इसमें रूट्स निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। आप पहले इस क्वेश्चन का आप लोगों का होम मतलब जैसे ही आप बना लोगे, तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओगे कि इसमें मेरा इसका ज़ीरोज़ क्या आएगा। एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 5x माइनस 12, व्हाट आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये जो हम पॉलिनॉमियल दिए हैं, इसका ज़ीरो क्या आएगा, ये आपको ढूंढ के हमें आंसर, जब हम लाइव लेंगे क्लास तो उस समय आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग बना के बता दोगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अभी तुरंत हम बताएं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसका डिग्री जो होगा वो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, वैसा पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा मेरा क्या है, रूट्स है, या फिर आप उसको क्या नाम दो, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हम लोग इसको मान लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा को। अब हमारा पी एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लोग ये पढ़े हो कि हमारा क्या होता है, अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा माइनस ए बाई बी, और अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा सी बाई ए। इसका हम देखो एक एग्जाम्पल से इसे शो करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम एफ एक्स ले लिए, एक फंक्शन ले लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो देखो यहाँ पे ए का काम कर रहा है मेरा 1, बी का काम कर रहा है 7 और सी का काम कर रहा है 12। ठीक है, तो आप बताओ कि यहाँ पे अभी हमको तो सबसे पहले ए का काम मेरा 1 कर रहा है, बी का काम 7 कर रहा है और सी का काम 12 कर रहा है। तो अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ रूट्स निकालना होगा, रूट्स का जो अगर हम सम निकालेंगे तो वो हमारा माइनस बी बाई ए होगा, मतलब इसका आंसर -7/1 होगा, मतलब -7 होगा। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो सी बाई ए होगा, मतलब कि 12/1 होगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसको वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं कि ये सच में आ रहा है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं कि एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। मतलब आपको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिए तो ये भी x प्लस 4। तो आपका आंसर यहाँ पे हो रहा है x प्लस 3 और x प्लस 4। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू 2 आएगा, -3 और -4। मतलब ये वाला एक जो है ये आपका अल्फ़ा का काम कर रहा है और ये आपका क्या काम कर रहा है, बीटा का। तो आप देखो तो चेक करके कि क्या आपका अल्फ़ा प्लस बीटा -3 -4 -7 तो आ ही रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -3 इंटू -4 मेरा 12 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही नहीं रिलेशन से निकाल चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेशन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको 2 रूट्स का सम निकालना है तो आप इक्वेशन देख के भी निकाल लोगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से हम लोग दूसरा रिलेशन, अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को
हुज ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा बीटा अगर लिखा हुआ है, मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका। मान लो कि अगर आपको रूट्स सिर्फ पता है तो आप सिर्फ रूट्स की मदद से भी ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है, ये तो हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे विथ एग्जांपल। नाउ अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो देखो स्टूडेंट्स, यहीं पर हम बता रहे हैं, इसको शॉर्ट में बताते हैं कि क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है, अगर हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमारा रूट्स हम मान के चलते कि चलो रूट्स या फिर मेरा जो ज़ीरोज़ है वो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा आएगा। ठीक है, तीन तीन आएगा। और उसका जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो मेरा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा मेरा क्या होता है, सी बाई ए होता है। और तीनों का जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा गामा वो होता है डी बाई ए। ये आप लोग पढ़े हो। और अगर मान लो कि इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको अगर रूट्स दिया हुआ है ये तीनों, और आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सब हमारी इम्पॉर्टेंट बातें हो गई फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, व्हेन अल्फ़ा बीटा गामा आर द थ्री रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में जब रहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है, तो इस तरह से रिलेशन निकालते हैं। तो ये हम यहीं पे आपको बता दिए शॉर्ट में कि ये इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ये हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट हो गया कि इसमें हम लोग इस तरह से काम करके आंसर्स ले आते हैं। अब अगर हमको आपको क्वेश्चन दे तो आप देखो इसको कैसे बनाओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो स्टूडेंट हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 2 माइनस 3 4 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा, अगर हम लोग है ना 2 रखेंगे, अगर ये ज़ीरो है तो ये जो है पूरा फंक्शन ये भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर हम रखेंगे 3 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24 अगर करेंगे तो मेरा आप देखोगे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3 4 ज़ा 12, मतलब आपका -4 हो जाएगा, -4 और -20 आपका -24 प्लस 24 आपका यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि ये तो 2 तो आपका ज़ीरो है। अब अगर हम लोग को नेक्स्ट चेक करना है -3 पे, तो देखो हम लोग -3 पे चेक करेंगे तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -10 इंटू -3 प्लस 24। तो यहाँ भी आप करोगे तो 27 -27 माइनस आपका क्या हो जाएगा, -27 और 9 -27 अगेन, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 54। तो ये आपका वापस से ज़ीरो आ जा रहा है। तो वापस से अगर आपका ज़ीरो आ जा रहा है तो ये मेरा वैल्यू जो होगा ओवरऑल क्या हो जा रहा है, ये मेरा वैल्यू जो है ओवरऑल ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी रूट है। फिर अगर हमें चेक करना होगा 4 पे, तो 4 पे भी मेरा वही चीज़ होगा आपका 4 का अगर आप क्यूब करो, -3 इंटू 4 का स्क्वायर करो, -10 इंटू 4 करो, प्लस 24 करो, तो आपका यहाँ भी वैल्यू ज़ीरो आएगा। मतलब ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2 -3 एंड 4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल।
वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हमको वेरीफाई करना है। तो देखो मेरा पॉलिनोमियल क्या था, मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ था कि x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। तो आप बताओ a का काम 1 कर रहा है, b का काम आपका कौन कर रहा है, b का काम आपका -3 कर रहा है, और c का काम आपका -10 कर रहा है, और d का काम आपका 24 कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग, और हमारा अल्फ़ा बीटा का काम कौन कर रहा है, अल्फ़ा जो है वो मेरा 2 है, बीटा मेरा -3 है, क्योंकि मेरा ये तो रूट्स दिया हुआ है ना, और एक लास्ट है 4, और गामा जो है वो मेरा क्या है, गामा का वैल्यू 4 है। तो अब आप देखो कि हम लोग चेक करते हैं, हम लोग क्या जानते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो देखो -b/a अगर हम लोग करेंगे तो b का वैल्यू तो -3 है और a 1 है, मतलब -3/1, और पहले से बाहर में माइनस मतलब 3 आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा अगर हम 2 रखेंगे, बीटा अगर -3 रखेंगे, और ये 4 रखेंगे, तो मेरा देखो वैल्यू -1 + 4 मतलब मेरा वैल्यू 3 आ रहा है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वेरीफाई करके देखते हैं किसे, ये तो हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे कि c/a होता है। c का वैल्यू देखो -10 है और a का वैल्यू 1 है, तो मतलब इसका वैल्यू -10 आ रहा है। चलो ठीक है, हम लोग चेक करके देखते हैं। अल्फ़ा मेरा क्या था 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4, नहीं अल्फ़ा का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। तो देखो ये हो जाएगा -6 -12 प्लस 8। ये समझ रहे हो ना हम कहाँ से लाएं, अल्फ़ा 2 है, बीटा -3 है और गामा 4 है, तो 2 इंटू -3 -6, तो ये आपका हो जाएगा -18 प्लस 8, तो इसका वैल्यू 10 आ रहा है, -10, और यही वैल्यू यहाँ भी आ रहा है, यही वैल्यू यहाँ पे रहा, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम लोग एक और चीज़ क्या वेरीफाई करना है, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो -d/a होता है। तो -d मतलब कि -d का क्या है, d का वैल्यू 24 है, तो -24/1 मतलब कि आंसर -24। अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा -3 और ये 4 है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा -24, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप लोग इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गिवन फार्मूला जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो यही था पॉलिनोमियल्स। अब हम एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको चेक करके बताना है कि क्वेश्चन है ये, अगर आपसे बनता है अभी तो -3 -1 -1/3 आर द zeros of polynomial, are the zeros of polynomial 3xpx दिया हुआ है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। हमको ये चेक करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेना। अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमसे लाइव सेशन में पूछोगे, ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिवाइज करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के इक्वेशंस जनरली आते हैं और इसी के इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना होता है। अब देखो जैसे कि हमारा एक पास एक क्वेश्चन है कि x² माइनस 5x प्लस 6 जो है वो 0 है, तो आपको ये बताना है कि x के जगह पे हम क्या रखेंगे जिससे 0 आ जाए। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो f 5x प्लस 6 है, तो 5x को हम कैसे तोड़े कि 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे या माइनस करने पे 5 आ जाए। तो हम लोग इसको ऐसा 2x
-3x ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। -2 इंटू -3 मेरा क्या होगा, -2 इंटू -3 मेरा 6 हो जाएगा, और -2 -3 मेरा -5 हो जाएगा। तो हम लोग देखो इसको ऐसे लिख दिए, x को कॉमन ले लिए तो x -2 और -3 को कॉमन ले लिए तो x -2 बराबर 0। तो x -2 x -3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2,3 आ गया। चलो ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग x के जगह पे 2 या 3 रखेंगे तो मेरा आंसर जो है वो मेरा ज़ीरोज़ हो गया, इसी को हम लोग ज़ीरोज़ या ये कहते हैं। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा हम तुमको ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए जिसको तुमको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में हम लोग कभी कभी फार्मूला यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या रखें जिसको प्लस या माइनस करने से मेरा आंसर जो है वो बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इसके प्रोडक्ट, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो वैसे केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि मान लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो क्या कहता है कि मान लो कि आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x निकालने के लिए आपको, अगर x निकालना है, x ही निकालना है हमें, तो हम देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते थे d, और d का फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac, ठीक है। और d निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना होता था, x का वैल्यू निकालना होता था। x का वैल्यू होता था -b प्लस माइनस √d/2a। ये है हमारा पूरा इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोग x का, तो ये तो आपको याद आ ही गया होगा कि आप लोग पढ़े हो इससे पहले भी, लेकिन हम लोग जस्ट एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि इसको हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो आप यहाँ पर ये देखो कि इसके भी कुछ नेचर होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो अगर आप d निकालोगे तो d हमारा क्या है, b² माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स आएगा, ठीक है। अगर आपका b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। दोनों रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। और अगर आपका b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो आपके नो रूट्स आएंगे, या फिर उसको आप कहें नो ज़ीरोज़, या फिर हम लोग है ना इसको कहेंगे इमेजिनरी रूट्स आता है। तो इमेजिनरी रूट्स तो अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जब आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स 1 में पढ़ोगे तब आप लोग पढ़ोगे, तो ये इमेजिनरी रूट्स आएगा इसका वैल्यू। तो इसीलिए अभी आपको सिर्फ ये दोनों को पढ़ के चलना, आगे बढ़ना है आपको। ये वाला भी आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर 1 में। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे a का काम 9 कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है, और c का काम कौन कर रहा है, -2। जनरली स्टूडेंट माइनस लिखना भूल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2, तो मतलब 49 माइनस ये क्या हो जाएगा 36, और 2 आपका वैल्यू जो होगा वो लगभग में आ जाएगा, इसका वैल्यू 36, 2 से आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 36 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 72। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 121, जो कि 0 से बड़ा है। और 0 से अगर बड़ा है तो हमारा आंसर 2 रूट्स आएगा डिस्टिंक्ट अलग अलग, और रियल रूट्स आएगा। तो देखो इसमें क्या आएगा मेरा वैल्यू, इसको हम लोग उसका वैल्यू को देखते हैं निकाल के, x का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर मेरा क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखो -b का काम कौन कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है, -7 प्लस माइनस √121 क्योंकि d का वैल्यू हमारा 121 आया, और 2 इंटू a का वैल्यू देखो क्या है 9 है।
तो देखो -7 प्लस माइनस, ये रूट किसका है 121, 11 का है, 11/18। अब देखो हमारे पास दो रूट्स आना चाहिए, तो एक बार हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस। देखो एक बार हम +11/18 ऐसा लेके चलेंगे, और एक बार हम लोग -7 -11/18 लेके चलेंगे। तो यहाँ देखो ये मेरा अगर 11 में से अगर 7 गया तो क्या बचेगा 4, तो मेरा यहाँ पे बच रहा है 4/18। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 2/9 हो गया। यहाँ पे देखो -18/18 होगा, ये कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखो बिना कुछ दिमाग लगाए, मतलब बिना कुछ सोचे कि क्या कैसे इसको तोड़े, कि प्लस या माइनस करे, कि मेरा आंसर जो है वो मेरा जो आंसर है वो आपका ये कैसा आ जाए कि मल्टीप्लाई करने प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है, और जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमें ये सब कुछ सोचना भी नहीं पड़ा और हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या फिर एक इसे हिंदी में श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल दैट यू शुड हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाया जाता है। और इसमें ये आपको नेचर ऑफ द रूट्स को भी ध्यान में रखना है कि डी आपका ऐसा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी अगर ऐसा हुआ तो रियल एंड इक्वल, और अगर ये ऐसा हुआ तो नो रूट्स आएगा, इमेज, और अगर आएगा भी रूट्स तो वो इमेजनरी रूट्स होगा, जिसको आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है आगे। तो यही हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके रखना, जिसको हम लोग लाइक तो ये आपका क्वेश्चन देखो क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x² + 5√3x + 6 = 0। इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आंसर लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना। 2x² + 5√3x + 6, तो यहाँ पे ए का काम आपका 2 कर रहा है, बी का काम आपका 5√3 कर रहा है, और सी का काम आपका 6 कर रहा है। हम बस डी निकाल के बताते रहे, उसके आगे का काम आप लोग को करना है। b² - 4ac होता है डी, तो b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 2 हो गया, और सी का मतलब 6 हो गया, तो 5। और आपका यहाँ पर देखो कि 5 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, और √3 इंटू √3 मतलब 3, -12 4 ज़ा 48। तो ये आपका वैल्यू जो होगा वो 75 - 48, तो लगभग में इसका वैल्यू 27 आएगा, और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो उसके बाद आप लोग x का वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ±√d/2a, और इसमें अगर इसका आंसर हम आप लोगों से लाइव सेशन में पूछेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है, अब इसको आप लोग करके रखोगे। अब हम लोग देखो नेक्स्ट एक और चीज़ पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब देखो क्या होता है कि हम लोगों के पास अगर ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि मान लो कि a1x + b1 y = c1, और a2x + b2 y = c2। आपको ऐसा x और y का वैल्यू निकालना है कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो दो इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि x और y दो वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल ऐसे नहीं, ये लीनियर भी है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, और लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल पे है 2 वेरिएबल पे। तो देखो जब भी इस तरह का कंडीशन होता है कि हम लोग को a1x + b1 y = c1 और a2x + b2 y = c2 ऐसा निकालना होता है, तो हम लोग जनरली यहाँ पे 3 फार्मूला, 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला तरीका होता है, पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। आप लोग पढ़े हो एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको वो तीनों तरीका एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ एकदम टफ नहीं है, लेकिन आपको बस एक बार आपको मेमोराइज़ कराना है। शायद आप एक बार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ हम ऐसा पहले भी बनाए हैं। तो देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि 3x + 2y = 4 और ठीक है, ये इक्वेशन है 3x + 2y = 4 नहीं, ये 12 ले लेते हैं, है ना, ये 12 ले लेते हैं =12 और एक और इसके साथ है x - y = -1। ठीक है, ये हम दो इक्वेशन ले लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो देखो इसको सबसे पहले हम कौन सा मेथड से बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं, तो आप लोग बताना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3x + 2y = 12 है और x - y = -1 है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन 2 है और ये मेरा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 से x या फिर y का वैल्यू निकाल के हम 1 पे पुट कर देंगे। तो मान लो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में मेरा x - y = -1 है, तो हम यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं कि ये y इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा y - 1। ठीक है ना, ये प्लस में आ गया और इधर -1 तो पहले से था ही। अब ये वाला x का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो देखो 3, अब x के जगह पे हो जाएगा y - 1 + 2y = 12। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3y - 3 + 2y = 12। तो देखो ये हो जाएगा 5y - 3 = 12। तो 5y = 15 हो गया, माइनस है तो उधर गया, तो दिस इम्प्लाइज डैट y = आपका 3 हो गया। अब अगर y का वैल्यू 3 हो गया तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर तो हम लोग y - 1 माने थे ना, 3 - 1 हो जाएगा, डैट इज़ 2। समझ में आया, ये हो गया वैल्यू 2। तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। अब इसे अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से बनाना होगा, कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि 3x + 2y = 12 है और x - y = -1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। तो इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाले को, मतलब ये इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये जो इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 2y = 12 हो जाएगा और ये अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 3y = -3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले में हो गया। अब इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3x में से 3x गया कैंसिल, ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। देखो प्लस माइनस में, यहाँ माइनस है तो ये प्लस में, 3 + 2y क्या हो जाएगा आपका 5y = 12 + 3 आपका 15। तो यहाँ से भी मेरा y का वैल्यू 15/5 डैट इज़ 3 आ रहा है। तो आप इसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो हम यही इक्वेशन में पुट कर दिए, y का वैल्यू अगर हम -3 पुट करेंगे तो उधर जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा ऑब्वियसली 2 आ ही जाएगा। समझ में आया, तो ये हमारा तरीका है जिससे कि हम लोग इसको, ये मेरा x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू, ठीक है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो हम दो मेथड्स बताएं आपको, कौन कौन सा मेथड बताएं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जनरली स्टूडेंट्स क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ये उतना भी टफ नहीं है। आप एक बार देखो कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या तरीका है कि आप सारा को पहले एक तरफ ले आओ, 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे कि ये मेरा 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो हम लोग काम कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, जब हमको x का लिखना होगा तो हम x को हाइड करेंगे,
ठीक है। x को मान लो कि हम हाइड कर दिए, ये x मेरा हाइड हो गया, ठीक है, x हाइड हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, y वाला पोर्शन बचा, ये y वाला पोर्शन बचा। तो 2 इंटू वन, 2 इंटू वन क्या होता है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, माइनस 1 इंटू -12, तो वो हो जाएगा +12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। सिमिलरली जब हमको y के नीचे लिखना होगा तो हम y वाला पोर्शन को हाइड कर देंगे, ठीक है, माइनस नहीं हाइड होना चाहिए, हाँ। तो देखो -12 इंटू वन क्या होगा -12, ठीक है, मतलब मान के चलो कि हम y वाला पोर्शन हाइड कर दिए, तो -12। अब उसके बाद देखो 1 इंटू थ्री क्या हो जाएगा -3। सिमिलरली अब अगर हमको ये करना है, सिमिलरली अगर हमको z का वैल्यू लिखना है, तो देखो z में क्या हो जाएगा, z को हाइड करेंगे, तो z को अगर हम हाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, ये 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, और माइनस ऑफ 2 इंटू 1 2। देखो कैसे हम लोग हाइड कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हाइड किए तो क्या हो गया, इसको अगर हम लोग हाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू वन, 2 इंटू वन, देखो 2 इंटू वन हो जाएगा, ये वाला देखो 2 इंटू वन हो जाएगा। तो 2 इंटू वन अगर वैल्यू हो जाएगा तो आप लोग इसका यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे -1 इंटू -1 12, तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन देके 12। फिर जब y को हाइड करेंगे तो y को मान लो हाइड कर दिए हैं, तो माइनस इधर से शुरू करेंगे, यहाँ से -12 इंटू वन 12, -12 -3। फिर हम लोग इसको हाइड करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, x बाई नीचे -10, y बाई -15, और नीचे z बाई, अच्छा z तो नहीं है ना यहाँ पे, हम लोग को इसको 1 लिखना चाहिए था, ठीक है, कुछ नहीं है, z तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि z नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हो गया -5। अब हम लोग इससे एक बार इसको इक्वेट कर देंगे और फिर y से इसको इक्वेट कर देंगे, तो देखो x बराबर हो जाएगा -10 बाई -5, और y बराबर क्या हो जाएगा -15 बाई -5, तो ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, तो आप तुरंत नहीं बना पाओगे कि लाइव क्लास में आप हमसे बता सको आंसर, लेकिन आप हम ये नेक्स्ट क्लास में के लिए दे रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करोगे तीनों मेथड से, और दिखाओगे कि कैसे, तीनों मेथड से सॉल्व करके चेक करोगे कि क्या तुम लोग से हो रहा है या नहीं, ठीक है। सॉल्व बाय ऑल थ्री मेथड, बाय ऑल थ्री methods, okay. So this is all about today's class. If you have any doubt you can ask in live session, or there is a discussion forum, you can ask your doubts there also. Thank you.